Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the exercise part of the poem which we have learned in the previous video, poem number 2.4, People Upstairs. So please turn with me to page number 60. Read and find section. Roman number 1, match the words with the pictures. यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ड यहाँ पे 9 वर्ड्स दिए गए हैं, उसे हमें अप्रोप्रिएट पिक्चर के साथ मैच करना है. सो आई थिंक ऑल वर्ड्स वी हैव डिस्कस्ड इन द पोम, सो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू मैच, सो यू हैव टू मैच योर सेल्फ. नाउ वी विल डिस्कस रोमन नंबर 2. राइट डाउन ऑल द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम. अब इस पोम में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आए हैं, हमें 6 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स हमें लिखना है. सो पेयर नंबर 1, व्हाट यू कैन राइट इन पेयर नंबर 1? बैले, BALLET, बैले. एंड सेकेंड डैश में हम लिखेंगे अले, ALLEY, अले. In second box you can write tours, TOURS, tours. and उसके नीचे आप लिख सकते हैं yours, YOURS, yours. In third one you can write week, WEEK, week. next उसके below आप लिख सकते हैं leak, LEAK, leak. In fourth you can write mix, MIX, mix. and below you can write sticks, STICKS, sticks. so हमें rhyming word find करना है. ओके, weak, leak, mix, sticks, तो ये सब rhyme हो रहे हैं. next in fifth you can write abates, ABATES, abates. and below that you can write skates, SKATES, skates. and in sixth pair you can write more, 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 floor, FLOOR, floor. now below that यहाँ भी हमें कुछ rhyming words लिखना है. now add 2 more rhyming words to each pair. हमने जो पेयर लिखा है ऑलरेडी ऊपर, उसमें हमें कुछ ऐड करना है rhyming words नीचे, 2 more. ओके, तो हम फर्स्ट वाले में लिखेंगे वैली, ट्रॉली, वैली, ट्रॉली. एंड इन सेकेंड पेयर यू कैन राइट डूअर्स, क्यूअर्स, डूअर्स, क्यूअर्स. इन थर्ड वन यू कैन राइट बिग, सीक, बिग, सीक. एंड इन फोर्थ वन यू कैन राइट फिक्स, ट्रिक्स, फिक्स, tricks. and in fifth one you can write heads, gates, heads, gates. and last sixth pair में आप लिख सकते हैं door, roar, door, roar. so students ये सब थे rhyming words जो एक दूसरे के साथ rhyme होते हैं, उसे हम कहते हैं rhyming words. now रोमन नंबर 3 में हम देखेंगे क्या है. On the basis of your reading of the poem, complete each sentence. Now already हमने poem सीखा है, we have understood each line of the poem. Now अभी हमें with the help of the poem हमें इस blank को complete करना है. Okay, complete each sentence. So हम देखेंगे हमारा first one क्या है, already यहाँ पे दिया गया है as an example. The people upstairs डैश. तो पीपल अपस्टेयर्स क्या करते थे वो लोग, दे यूज टू प्रैक्टिस बैलेट. सो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस बैलेट. सो इन द सेम वे हमें कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 2 to 9. सो सेकेंड वन है दे ट्यून देयर रेडियो डैश. सो योर आंसर विल बी लाउडर देन द पोएट्स. दे ट्यून देयर रेडियो लाउडर देन द पोएट्स. थर्ड वन द सीलिंग्स लीक when dash. your answer क्या होगा आपका, they take a shower. the ceiling leak when they take a shower. fourth one their guests dance on dash. answer होगा pogo sticks. their guests
dance on pogo sticks. Fifth one, they go to the bathroom on dash. आंसर होगा roller skates. They go to the bathroom on roller skates. Sixth one, the music in their parties is dash. आंसर होगा a remix of several songs. The music in their parties is a remix of several songs. Seventh one, they celebrate their weekends dash. आंसर क्या लिखेंगे? All the week. They celebrate their weekends all the week. Eighth one, the poet wants the people upstairs dash. So आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? To live on another floor. The poet wants the people upstairs to live on another floor. And last one, ninth one है, their living room has been changed into dash. तो आपका आंसर होगा a bowling alley. Their living room has been changed into a bowling alley. Now students, we will move towards page number 61. Page number 61 में हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, word power. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? There are 8 compound words in the poem you have just read. Okay, हमने जो poem यहाँ पे पढ़ा है इसमें 8 compound words हैं. So students, compound words क्या होते हैं? Compound words are formed when 2 or more words are joined together. जब 2 words को या 2 से अधिक words को हम join करते हैं एक साथ, and then उससे क्या होता है? एक नया word बनता है. To create a new word that has an entirely new meaning. Okay? जब हम 2 words को या 3 words को, अक्सर 2 words को हम क्या करते हैं? Combine कर देते हैं और उससे एक नया word बनता है. ओके, एंड उसका जो मीनिंग है बिल्कुल अलग होता है. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हम कह सकते हैं सन. ओके, सन मीन्स सूरज होता है, और हम दूसरा वर्ड लेते हैं फ्लावर मीन्स फूल होता है. इफ़ यू कंबाइन दिस बोथ वर्ड, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है? सनफ्लावर. यानी सनफ्लावर एक फ्लावर है जो हम सब ने देखा होगा. तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स. तो स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये काफ़ी इजी है, इट्स वेरी इजी. यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट वी कैन फिल हियर. यहाँ पे टोटल 8 ब्लैंक दिए गए हैं. सो इन फर्स्ट ब्लैंक यू कैन राइट अपस्टेयर्स. अप और स्टेयर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपस्टेयर्स. एंड सेकेंड वन यू कैन राइट बाथरूम. थर्ड वन यू कैन राइट bedroom. Fourth one you can write roller skates. Fifth one you can write weekends. And sixth one you can write bowling alley. Seventh one you can write pogo sticks. And eighth one you can write conducted tours. Okay students, now we have grammar in use. हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, 5 सेंटेंस. रीराइट ईच सेंटेंस एज डायरेक्टेड. हमें हर सेंटेंस को यहाँ पे ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें चेंज करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे आर टेकिंग ए शावर. हमें कैसे चेंज करना है? इस सेंटेंस में हमें यूज़ करना है गोइंग टू. ओके, क्या यूज़ करना है? गोइंग टू. वेरी इजी है, बहुत ही आसान है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर गोइंग टू टेक ए शावर. दे आर गोइंग टू टेक ए शावर. सेकेंड वन है देयर रेडियो इज लाउडर दैन योर्स. देयर रेडियो इज लाउडर दैन योर्स. अभी इंस्ट्रक्शन क्या है? हमें यूज़ करना है नॉट सो डॉट डॉट एस, यानी इसे हमें यूज़ करना है. सो योर आंसर विल बी your radio is not so loud as theirs. Your radio is not so loud as theirs. Third one, I might love the people upstairs. I might love the people upstairs. अभी हमें इसे क्या करना है? पास्ट फॉर्म में बनाना है. ओके, पास्ट फॉर्म में बनाना है. तो हम यहाँ पे
क्या लिखेंगे? I might have loved the people upstairs. Fourth one, their living room is a bowling alley. Their living room is a bowling alley. इसे हमें क्या करना है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में भी होना चाहिए, इंट्रोगेटिव में भी होना चाहिए. सो योर आंसर विल बी, isn't their living room a bowling alley? Isn't their living room a bowling alley? Fifth one, they go to the bathroom on roller skates. They go to the bathroom on roller skates. इसे हमें only interrogative में change करना है, change into interrogative. So your answer will be, do they go to the bathroom on roller skates? Do they go to the bathroom on roller skates? So students, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज पार्ट फिनिश हो जाता है. वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज पार्ट एंड द पोम. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो टुडे वी विल स्टॉप टिल हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अ न्यू चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.